Hello and welcome back again to my channel, and we are discussing the evolution of telecommunication. Some part of the wireless telephone history has been covered in the previous lecture, so we are moving ahead with the discussion. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन थर्ड जनरेशन तक का डिस्कस कर लिया था। फोर्थ जनरेशन में जब हम बात करते हैं तो ई नेट्स as I told you in the previous lecture, A, B, C and D nets were already there in the Germany, and then E nets came into the picture. वो जो टेक्नोलॉजी थी वो GSM के 1800 मेगाहर्ट्ज वाली टेक्नोलॉजी थी। स्मॉलर सेल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिससे फ्रीक्वेंसी रीयूज जो है वो बढ़ जाए। What is frequency reuse? That is our topic of discussion in the future lecture. Okay. Then it covered 98% of the people. In 1996, hyperLAN technology, high performance radio local area network established, and it was using the bandwidth of 5.15 to 5.30 gigahertz, and the data rate was 23.5 megabits per second. Yeah, but we are talking about the LAN this time. No? This is not wireless. Local area network without wireless. Okay, we are talking about. The recommendations for type 2 and type 3, both 5 gigahertz and 17 gigahertz as wireless ATM networks. And then in 1997, wireless LAN has been standardized by the IEEE. IEEE stands for Institution of Electrical and Electronics Engineers. This is a worldwide organization. And 802.11 is nothing but the standard. See, why standards are important? Because if we want to apply the logic globally, then we have to follow some standards. Okay, if we do not follow some standards or some pre-specific the protocols, then if I develop anything in my country, that will not be applicable to the other country. So that is why the protocols are made, और उसी के लिए हम लोग अलग अलग, भले ही हम अलग कंट्रीज में रहें, बट प्रोटोकॉल हमेशा सेम रहते हैं और इसीलिए वो स्टैंडर्ड बनाए भी जाते हैं। तो IEEE स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1997, 2.4 to 2.5 gigahertz. They were using the infrared 2 megabits per second technology, and बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड उस समय पे अवेलेबल हो गए थे। 1998, UMTS into the picture. It came into the picture. Universal Mobile Telecommunication System, again a technology. And European proposal for IMT. IMT stands for International Mobile Telecommunication. These are the two standards, UMTS and the IMT. So IMT is itself a topic of discussion. So in some other lecture we will discuss about IMT in detail. क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, that what modulation technique it will use, है ना, how much area it will cover, what frequency it will use. Okay, so a lot of things are there as far as the standard is concerned. So 66 satellites were used at that point of time for the GSM successors, and 1.6 gigahertz of the technology for the mobile phone, which was established for this particular specification. Okay, and then further going, यहाँ से history of wireless communication 5th generation start होता है, standardization of the additional wireless LANs. तो IEEE standard 802.11b, 11b 11a is nothing but the versions, जो अलग अलग versions आते गए, और आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीड आ गई, अलग अलग बैंडविड्थ आ गए, फिर IMT 2000 का डिसीजन लिया गया उस समय पे. ओके, सो सेवरल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, UMTS, CDMA 2000, DECT, ये सारे जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, उसको एक तरीके से एक कहना चाहिए अंडर दी वन अम्ब्रेला लाने की कोशिश की. ठीक है. Then start of web. Web is nothing but the wireless application protocol. I mode जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ. And then first step towards it was the first step towards a unified internet mobile communication system, as I told you in the previous slide. जब तक के कोई unified सिस्टम नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि जो स्टैंडर्ड आप यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा हर जगह पे एप्लीकेबल होगा. तो वो यूनिफाइड होना बहुत ज़रूरी है. तो इट वाज स्टार्टेड
as far as the internet mobile communication system is concerned. और इसके कारण से it gave access to the many services via the mobile phone. Okay. 2000 year 2000 में जब हम आते हैं तो GSM जो है वो हायर डेटा रेट्स के साथ लॉन्च होता है. HSCSD एक टेक्नोलॉजी है जो 57.6 है, वो 0.6 है किलोबिट्स पर सेकंड का डेटा ऑफर करती है. ओके, एंड देन GPRS स्टार्टेड. GPRS अभी हम लोग LTE यूज करते हैं जब हम 4G यूज करते हैं, तो बहुत सारे GPRS आया, एज आया, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड द वायरलेस कम्युनिकेशन एज वेल. और ये जो था वो पैकेट ओरिएंटेड था. तो पैकेट ओरिएंटेड होने का ये मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कोई डेटा भेजा, देन यू विल सेंड मी अ एक्नॉलेजमेंट फॉर दैट डेटा कि I have received that data, and after getting that acknowledgement I will send the next data. Until I get the acknowledgement I will not send the next data. Okay, this is how the packet transmission happens. And the disadvantage of the packet transmission is I have to wait again and again for your acknowledgement. और जब तक वो acknowledgement मुझे नहीं मिलेगा तब तक कि मैं next data नहीं भेजूंगा. ठीक है, तो इससे स्पीड स्लो होती है. इसको आगे फिर दूर किया गया बहुत सारे अलग अलग टेक्निक से. UMTS ऑक्शंस एंड ब्यूटी कंटेस्ट, ये जो है एक तरीके से एक कहना चाहिए सिंबलाइज करने की कोशिश की गई कि UMTS के ऑक्शंस हुए जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स होते हैं. ओके, तो उसमें ऑक्शंस में हम लोग मतलब जो मोबाइल कंपनीज है वो लाइसेंस के लिए फाइट करती हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो UMTS के लाइसेंस उस समय लॉन्च होना चालू हो गए 2000 के बाद से. And then in 2001 3G system was conceptualized in Korea. तो और UMTS ने इसको यूरोप में भी टेस्ट किया, CDMA ने कोरिया में टेस्ट किया, है ना, और फोमा ने जो है वो जापान में टेस्ट किया. ठीक है. In India, if we talk about specifically 2008, 11 December 2008, 3G mobile came into the picture by the महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, MTNL जिसको हम बोलते हैं, और फिर BSNL ने भी, भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी उसको अडॉप्ट किया और उसको फिर हम लोगों ने सर्कुलेट किया ओवर द कंट्री. ठीक है, तो यू कैन सी द डिफरेंस. 2001 में 3G सिस्टम कंसेप्चुअलाइज हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि 2002-3 तक के इट वाज ऑलरेडी देयर इन द फॉरेन कंट्रीज, बट इंडिया में आते आते 5-6 साल का लैग हो ही जाता है टेक्नोलॉजी. एंड देन वी टॉक अबाउट द इनिशियल कंसेप्शन ऑफ द 4G टेक्नोलॉजी. अब ये इनिशियल कंसेप्शन की बात है. ठीक है, तो इनिशियल कंसेप्शन जो है स्ट्रेटेजिक विजन जिसको बोलते हैं, वो 4G टेक्नोलॉजी का आता है 2002 में. ठीक, और ये IMT एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड था उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था. So in 2004 LTE was first proposed by NTT Docomo of Japan. You might not have forgotten about the Docomo का ऐड बहुत आता था बीच में. तो Docomo ये कंपनी थी जिसने पहली बार जापान में प्रपोज किया LTE टेक्नोलॉजी. In 2005 OFDMA transmission, orthogonal frequency division multiple access, we will talk about this, is chosen as the candidate for the HSOPA downlink, है ना. लेटर उसको 3GPP नाम दे दिया गया. एंड देन UTRA भी एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया गया 2005 में. आफ्टर दैट द 4G सिस्टम वाज ओरिजिनली एनविजन्ड बाय द DARPA, that is the Defense Advanced Research Project Agency placed in USA. ठीक है, तो इनिशियल कंसेप्शन तो जरूर जापान ने दिया, बट उसको फिर अडॉप्ट करके आगे बढ़ाने का काम है वो US की इस डिफेंस एजेंसी ने किया है. And then in 2007 the Japanese company NTT Docomo tested a 4G communication system prototype जिसमें 4x4 MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की प्रोविजन थी. अगेन OFCDM हो गया, अभी OFDMA से OFCDM हो गया. कोड CDM स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ओके, और ये टेक्नोलॉजी जो है यू कैन सी 100 megabits per second while moving and 1 gigabits per second while stationary. A huge difference, a huge gain in terms of the data speed was achieved by this Japanese company. नवंबर 2008 में STC ने अनाउंस किया पहला WiMAX फोन जिसको Max 4G बोलते हैं. And then December 2009 the first commercial LTE deployment was in the Scandinavian capitals Stockholm and Oslo by the Swedish-Finnish network operator Telia Sonera and its Norwegian brand name Netcom. तो ये सारे जो
टेक्नोलॉजी थी इन सारी कंट्रीज में इन सारे स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, मॉडर्न डिवाइस जो है जो अभी ऑफर करता है जो अभी अभी हम लोग देखते हैं वो मॉडर्न डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सैमसंग ने किया है। ठीक, और उसका जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ह्यूआई है। ह्यूआई इज, डू नॉट फॉरगेट, ह्यूआई इज अ चाइनीज कंपनी, अ ह्यूज यू नो कहना चाहिए ब्रांड इन टर्म्स ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क्स, और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एरिक्सन जो है वो एक अनदर ब्रांड है। ठीक है, पहले सोनी एरिक्सन के फोन्स भी आते थे। तो ये उसी समय की बातें हैं जब सारा कोलेबोरेशन हुआ एंड देन द स्टैंडर्डाइजेशन वाज सेट। हम इंडिया की बात करते हैं तो एयरटेल ने 4G सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च किया है। एयरटेल को इसका क्रेडिट जाता है। 10th अप्रैल 2012 में एयरटेल हैज officially launched the modems and the LTE technology in India, specifically in Kolkata. Okay, let us talk about some other things. जो वायरलेस सिस्टम का ओवरव्यू है आप लोग इस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, you will have cellular phones and then the satellites and the cordless phones and the wireless LAN. How everything has been evolved. Cellular structure, I have been continuously talking about the cellular structure. ये cellular structure क्या होता है? ठीक है, जब हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन का बेसिक स्टार्ट करेंगे देन हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर और फ्रीक्वेंसी रीयूज के कंसेप्ट के बारे में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनएमटी की बात की थी, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी। तो 1981 में वो लॉन्च हुई, 1986 में और फर्दर डेवलप हुई, और एनएमटी जो है वो जर्मनी वाली टेक्नोलॉजी थी। फिर ये 1983 में आप देख सकते हैं एएमपीएस अमेरिकन जो सिस्टम था वो भी आया, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जितने भी ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, ब्लू ब्लॉक्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब एनालॉग कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करते हैं। एंड देन ऑल दी ग्रीन ब्लॉक्स आर टेलिंग अस अबाउट द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 1991 में यू कैन सी 1992 में जीएसएम सीडीएमए एंड एमपीएस टेक्नोलॉजी आती है। एंड देन इन टर्म्स ऑफ द सैटेलाइट भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। सैटेलाइट जो पहले एनालॉगस हुआ करते थे बाद में डिजिटल हो गए। ईरिडियम नाम है, इट इज नॉट रिलेटेड विद द ईरिडियम एलिमेंट। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का। एंड देन आईएमटी स्टैंडर्ड वाज सेट इन 2001। ओके, कॉर्डलेस फोन की बात करें तो भी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए 1980 से लेकर के 1991 में। और ऐसे ही वायरलेस लैन जो है उसने आपकी पूरी टेक्नोलॉजी को डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है, अब ये वायरलेस लैन है। ठीक, वायरलेस LAN is different than the LAN we establish in college using the fiber techniques. ठीक है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो 2000 ईयर में IEEE जो 802.11a स्टैंडर्ड दिया है उसी से ही हम लोग 4th जनरेशन की तरफ बढ़े। ओके, हाँ, फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करते हैं। वाइल ट्रांसमिशन ओवर डिफरेंट वायर्स टिपिकली डज नॉट कॉज इंटरफेरेंस। बिल्कुल, अगर आप डिफरेंट वायर्स यूज करेंगे अलग अलग ट्रांसमिशन के लिए तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन, बिकॉज द एयर इज द मीडियम। एयर इज द मीडियम, सो द फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द ट्रांसमिशन मस्ट बी रेगुलेटेड। जो भी हम ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन का मतलब अगेन प्रोटोकॉल है कि आप किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपने वॉइस या डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो फ्रीक्वेंसी फॉर द रेडियो ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस यूजिंग मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। और ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स का जो एक डायग्राम है आपको नीचे दिख रहा है, आप देखिए ट्विस्टेड पेयर या कोएक्स केबल जब हम यूज करते हैं तो हम लोग बहुत बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, VLF इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग EHF तक आए हैं। EHF मतलब एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। और फिर हम आ जाते हैं इंफ्रारेड पे, और फिर हम आ जाते हैं विजिबल लाइट पे। और ये जो विजिबल लाइट है यही ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। और वायरलेस जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम इसी विजिबल लाइट के रेंज को यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी हाई है। ठीक है, और ये हाई रखना भी जरूरी है, नहीं तो आप वायरलेस डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। वी आर यूजिंग द एयर फॉर द ट्रांसमिशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन स्टार्ट एट सेवरल किलोहर्ट्ज, उसको हम लोग वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। एंड देन वी गो फॉर द लो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज है इट कैन पेनिट्रेट वाटर।
इसलिए सबमरीन्स में जो है इस लो फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। And then some radio stations still use these low frequencies, 148.5 kilohertz to 283.5 kilohertz in Germany. Then medium frequency and the high frequency ranges, ये typically जो हैं वो रेडियो स्टेशंस पे हंड्रेड्स ऑफ रेडियो स्टेशंस के ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, एंड दे हैव द डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड द शॉर्ट वेव्स एंड द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, जो हम लोग रेडियो भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल में भी आजकल रेडियो अवेलेबल है, कार्स में रेडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एफएम जो है वो बहुत पॉपुलर है, 87.5 मेगाहर्ट्ज एंड 108 मेगाहर्ट्ज। तो इस रेंज के बीच में जनरली एफएम जो है वो यूज होता है। ये एफएम बैंड जो है वो इसी पर्टिकुलर काम के लिए असाइन किया गया, इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए असाइन किया गया है, जहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो चैनल्स की बात करते हैं, ठीक है। Short waves were typically short waves are typically used for radio transmission around the world. उसमें transmit power 500 kilowatt होता है. As we move to the higher frequencies, the TV station follow the conventional analog TV or is transmitted in ranges of 174 to 230 megahertz and 470 to 790 megahertz. TV ट्रांसमिशन जो है उसको हम लोग हमको ट्यून नहीं करना पड़ता है टीवी ट्रांसमिशन को, जैसे हम लोग ट्यून करते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी को कि हम 94.3 सुनेंगे या ये वाला सुनेंगे। जब हम टीवी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास चैनल होता है जिसमें हम स्विच करते रहते हैं, तो उस समय हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता। बट फॉर योर नॉलेज हम लोग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करते हैं जब टीवी का ट्रांसमिशन होता है। Okay, and then the UHF is also used for mobile phones with analog technology, and then the digital GSM, digital cordless telephones. You can see the different standards: 450 to 465, then 890 to 960, and then 1880 to 1900 megahertz. So these are the different frequency bands जो use होते हैं अलग-अलग frequency के range के according. 3G cellular system following the UMTS standard. एंड मैनी मोर, बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो आप देख सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जिसपे 3G सेलुलर सिस्टम वर्क करते हैं। ओके, सुपर हाई फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो देयर, दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर द डायरेक्टेड माइक्रोवेव लिंक्स एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यू आर स्टडिंग इन द एज द डिफरेंट सब्जेक्ट। ये जो रेंज है वो माइक्रोवेव लिंक्स के लिए होती है, एंड द सैटेलाइट सर्विसेज आल्सो। सैटेलाइट में भी अलग अलग बैंड्स होते हैं, इसमें सी बैंड जो है वो बहुत पॉपुलर है, 4 and 6 गीगाहर्ट्ज। सी बैंड एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आई थिंक यू विल बी स्टडिंग इन द फ्यूचर इन द 8th सेमेस्टर मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। केयू बैंड और ये जो सी बैंड है और के बैंड है, दीस आर द 3 इंपॉर्टेंट बैंड्स। ये जो 4 और 6 गीगाहर्ट्ज दिख रहे हैं ना, ये अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिस्कशन फ्यूचर का है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है। बस अभी के लिए आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वाले जो 4 and 6 गीगाहर्ट्ज है, 11 and 14 गीगाहर्ट्ज है, 19 and 29 गीगाहर्ट्ज है, ये सब अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स। ओके, एंड देन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी जो रेंज है वो कुछ 250 गीगाहर्ट्ज तक जाती है, 9 किलोहर्ट्ज टू 250 गीगाहर्ट्ज। सो the next step into higher frequencies involves optical transmission. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि भाई मुझे वायरलेस ट्रांसमिशन करना है, तो जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन है। मतलब विजिबल लाइट को मुझे यूज करना पड़ेगा वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, और उसको यूज किया भी गया है। ओके, as I told you earlier also, regulations are very important because by using these regulations हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन में हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। तो 3 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट का रीजन है, सोवियत यूनियन का रीजन है, देन फिर सेकंड रीजन आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड का, और रीजन 3 जो है वो फार ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का रीजन आ जाता है, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है वो ITUR के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें वर्ल्ड्स को इस तरीके से बांटा गया है। हम जो है वो रीजन 1 में आते हैं। ओके, ये एक पिक्चर है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से यूरोप, US और जापान में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है।
यूरोप में जर्मनी में NMT आया, देन यूएस में EMPS, TDMA CDMA आया, जापान वाज यूजिंग PDC टेक्नोलॉजी। फिर बाद में फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड्स के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी के एग्जांपल हैं NMT के बाद GSM, देन UMTS, देन CDMA। CDMA के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी मॉड्यूलेशन techniques, what is CDMA, what is OFDM, and all about. And the cordless phones, wireless LANs, and other technology, सबका आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है और एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट किया गया है। वायरलेस लैन की बात करें तो IEEE के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इसको वर्ल्ड वाइड हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो बनाए गए हैं, जैसे RF कंट्रोल, यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सैटेलाइट जो है हम लोग इरिडियम और ग्लोबल स्टार जो स्टैंडर्ड है वो यूज़ किया गया वर्ल्ड वाइड और establishing the wireless communication across the globe. Okay, so this is all about today's lecture. See you in the next lecture, and we'll be talking about some other basic concepts regarding the mobile communication and the related networks and history. Thank you for watching.